Welcome back to the galaxy of electrical engineering. Recently, we have started MCQ series of electrical machine. In previous video, we have taken 10 MCQs questions. In addition to that, we have given extra information as well. Hoping that you liked the previous video. In continuation of that, I have come up with the part 2 of Transformer MCQ series. So without a further ado, let's begin with the video. So this is our first question of this video. Following statements are made regarding the open circuit test on a single phase transformer. The statements are: it is performed on LV side. Second is it is performed at the rated current. Third one is it helps in the calculation of equivalent leakage impedance. Fourth one, it is performed on HV side. Fifth one is it is performed at a rated voltage. Sixth statement is it gives magnetizing current and core loss. Seventh one is it helps in the determination of voltage regulation. And the last one is it gives turns ratio. So from this, the correct answer is dash. So what we have been given in this question, that the question is related to open circuit test. Whenever we are doing open circuit test on transformer, and that too single phase transformer. So what are the correct statement that we need to know? ठीक है. So we have certain information regarding this. So चलिए उस information को हम study कर लेते हैं. So this is the information regarding open circuit test. So one by one हम points discuss करेंगे कि क्या होता है open circuit test and what we can be able to do from this. ठीक है. So जो main objective होता है open circuit test conduct करने का, that is first of all we can be able to find out the shunt branch parameter. ठीक है. So whenever the transformer is on no load condition, we can be able to find out the shunt branch parameter, that is R0 and X0. This one you can see. हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि R0 और X0 क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने का, वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट शंट ब्रांच पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है. सो R0 और X0 हम फाइंड आउट कर सकते हैं. R0 का वैल्यू क्या होता है? R0 इज नथिंग बट, आई एम गोइंग टू राइट हियर, R0 is equals to V1 by IW. IW क्या होता है? It is nothing but active component of current. ठीक है. And X0 is equals to V1 by I mu. And I mu क्या होता है? It is nothing but reactive component of current. ठीक है. ये दोनों पैरामीटर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो whenever you are doing open circuit test. Next one is to find out the magnetizing current या फिर no load current या फिर कोर या फिर आयरन लॉसेस. कोर एंड आयरन लॉसेस ये दोनों सेम ही है, एक ही नाम है इनका इन द ट्रांसफॉर्मर. सो और क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट मैग्नेटाइजिंग करंट. ठीक है. ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने के वजह से हम मैग्नेटाइजिंग करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नो लोड करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. नो लोड करंट आई नॉट, मैग्नेटाइजिंग करंट I mu, and iron loss and core loss, that means W0. ठीक है. ये तीनों पैरामीटर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड वन इज टू सेपरेट आयरन लॉसेस इनटू हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस. सो एज यू ऑल नो ओपन सर्किट टेस्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आयरन लॉस या फिर कोर लॉस. ठीक है. इट इज नथिंग बट दिस वन, बट in the form of addition of hysteresis loss and eddy current loss. So I can write here the addition of hysteresis loss and eddy current loss. ठीक है. So open circuit test के वजह से हम separate कर सकते हैं core losses या फिर iron losses into hysteresis loss and eddy current loss. And last one is we can be able to find out the turns ratio.
टर्न्स रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट से. सो दिस आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट. नाउ टेस्ट प्रोसीजर, हम कैसे प्रोसीजर अप्लाई करके ओपन सर्किट टेस्ट को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द प्रोसीजर. प्रोसीजर इज नथिंग बट जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, देयर विल बी टू डिफरेंट सर्किट, राइट. सो एक तो हम प्राइमरी साइड को कंसिडर करेंगे या फिर सेकेंडरी साइड को. प्राइमरी साइड कैन बी HV और LV, सेकेंडरी साइड कैन बी HV और LV डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफॉर्मर वी आर यूजिंग. ठीक है, सो अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा देन प्राइमरी साइड इज गोइंग टू बी LV एंड सेकेंडरी साइड इज गोइंग टू बी HV. अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा देन प्राइमरी साइड इज गोइंग टू बी HV एंड सेकेंडरी साइड इज गोइंग टू बी LV. ठीक है, सो टेस्ट प्रोसीजर क्या है. ओपन सर्किट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एट रेटेड फ्लक्स. सो रेटेड फ्लक्स पे ही हम ओपन सर्किट टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं and which can be achieved by exciting transformer at rated voltage and rated frequency. So rated voltage और rated frequency होना चाहिए in order to get the open circuit test done. See, if I have to draw here transformer diagram, ठीक है, यहाँ मैं ट्रांसफॉर्मर का सर्किट ड्रॉ कर लेती हूँ. दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, this is going to be LV side and this is going to be HV side. ठीक है, so whenever we are conducting open circuit test rated flux होना चाहिए. ठीक है, rated flux is the must condition. और rated flux हम कब मिलेगा, whenever we are exciting transformer at rated voltage. so जो भी हम voltage यहाँ अप्लाई करेंगे it should be rated voltage. Voltage should be rated. When voltage is going to be rated then only we can be able to achieve the rated flux in the transformer core. ठीक है, और जो सेकेंडरी साइड होता है हमारा, जो सेकेंड साइड है वाइंडिंग का, उसे हमें ओपन करके रखना चाहिए. ठीक है, सो टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन LV साइड एंड HV साइड इज ओपन सर्किटेड. Since B max is directly proportional to V by F in order to get the rated flux value. ठीक है, सो क्यों हम LV साइड पे ही टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, क्यों हम HV साइड पे टेस्ट कंडक्ट नहीं करते हैं. वी हैव सर्टेन रीजन रिगार्डिंग दैट. सो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम LV साइड में ही टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इफ द टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन LV साइड, अगर LV साइड में हमने टेस्ट कंडक्ट कर लिया देन LV सोर्स इज सफिशिएंट टू कंडक्ट द टेस्ट टू मेंटेन द रेटेड फ्लक्स. सो LV सोर्स, जो भी हम LV साइड में सोर्स प्लेस करेंगे that will be sufficient to conduct the test to maintain the rated flux. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, whenever we are conducting test on LV side low range meters are sufficient to conduct. So low range meters sufficient हो जाते हैं for the conduction of open circuit test. And third one is as the magnitude of no load current is more on HV side. आपको पता है that voltage and current have inverse relation. So अगर low voltage है that means voltage कम है, then we can be able to get the more current. So magnitude of no load current is more on LV side. Then the high no load current can be accurately measured compared to the HV side. ठीक है, अगर हमने HV साइड पे कंडक्ट कर लिया देन जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा नो लोड करंट का वो कम हो जाएगा. ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा देन इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू मेजर द वैल्यूज. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंडक्ट ओपन सर्किट टेस्ट ऑन LV साइड ओनली इन कंपैरिजन विद HV साइड. ठीक है, दिस आर द रीजंस कि क्यों हमें LV साइड पे ही कंडक्ट करना चाहिए. सो आई होप आपको ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी. सो मूविंग बैक टू अ क्वेश्चन, जितने भी स्टेटमेंट्स थे उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड वी कैन बी एबल टू गेट टू अ कंक्लूजन. ठीक है, सो फर्स्ट वन क्या है, इट इज परफॉर्म्ड ऑन LV साइड. सो यस, इट मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन LV साइड. It is performed at rated current.
सो क्या रेटेड करंट दिया गया था? नहीं, इट इज परफॉर्म एट रेटेड वोल्टेज, एट रेटेड वोल्टेज. So second statement is wrong. So next statement is it helps in the calculation of equivalent leakage impedance. So from this test क्या हम equivalent leakage impedance find out कर रहे हैं? No, we have to find out the shunt branch parameters. जो भी shunt branch parameters होंगे that we can be able to calculate through open circuit test. ठीक है, so यहाँ हम shunt branch parameters find out करेंगे. Shunt branch parameters. ठीक है, so this statement also wrong. It is performed on HV side. No, it is performed on LV side. It is performed at rated voltage. So yes, it is performed at rated voltage. It gives magnetizing current and core loss. So yes, it gives the magnetizing current and core loss as well. It helps in the determination of voltage regulation. So no, we cannot be able to calculate the voltage regulation from open circuit test. So ये हमारा wrong हो जाता है. And last one is it gives the turns ratio. Yes, we can be able to calculate the turns ratio from open circuit test. So कितने statements correct है? Statement number 1, statement number 5, statement number 6 and last is 8. So 1, 5, 6, 8 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? So it is in option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. So the question is following statements are made regarding the short circuit test on a single phase transformer. Statements are HV side is short circuited. Second one is it is performed at rated current. Third one is it gives the core loss. Fourth one is LV side is short circuited. Fifth one is it is performed at rated voltage. Sixth one is it gives ohmic loss on the side instruments are connected. Last one is it helps in the calculation of voltage regulation. So from this the correct answer is dash. So in this question what we have been given? We have been given a short circuit test. ठीक है. So single phase transformer में अगर हमने short circuit test कर लिया then what are the correct statements that we need to know? So we have certain information regarding the short circuit test. इसे impedance test भी कहते हैं. ठीक है. So we will discuss one by one कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने की वजह से एंड ऑल्सो टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट. सो वी हैव 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेन ऑब्जेक्टिव. सो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इट इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द वेरिएबल लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर. We have two different losses, right? Constant losses and variable losses. So constant losses हम find out कर सकते हैं through open circuit test, but variable losses we can be able to find out through short circuit test. ठीक है, so जो variable losses होता है it is nothing but copper loss only. ठीक है. Next point is to find out the series branch parameter in ohmic values when referred to the winding in which the test is conducted. So short circuit test से हम कौन से parameters find out कर सकते हैं? We can be able to find out series parameter but in ohmic values. ठीक है, ohmic values में हम series parameter find out कर सकते हैं. So कौन कौन से होते हैं हमारे series parameter? So it is nothing but R, X, Z. These are the series parameters. ठीक है. To find out the percentage resistance, percentage reactance and percentage impedance of the transformer. So we can also be able to calculate in percentage form. ठीक है, resistance, reactance and impedance ये सारे के सारे आप find out कर सकते हो. ठीक है, percentage R, percentage X and percentage Z का value. So knowing the percentage impedance value of the transformer,
the total voltage drop in the transformer as referred to primary or secondary can be calculated and hence the voltage regulation can be find out. ठीक है, सो आपको पता है दैट परसेंटेज इम्पिडेंस का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के वजह से. सो अगर परसेंटेज इम्पिडेंस का वैल्यू अगर आपको मिल गया देन यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन by finding the total voltage drop in the transformer as referred to primary या फिर secondary. ठीक है, so in this way you can be able to find out the voltage regulation in the transformer. Now what are the test procedure? Test procedure क्या होता है, कैसे होता है, how we can be able to conduct this test, इसे हम अभी one by one discuss करेंगे. ठीक है, so in short circuit test the applied voltage at rated frequency should be gradually increased until the rated current passes through both the windings. ठीक है, so previously open circuit test में क्या होता था, applied voltage ये rated होता था, rated voltage rated frequency in order to achieve the rated flux. but यहाँ rated कौन सा value होना चाहिए, rated value should be current value. जैसे हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया, हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे एट रेटेड फ्रीक्वेंसी. वोल्टेज को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे until the rated current is passed through both the windings. So शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी जो साइड होगा दैट शुड बी शॉर्ट सर्किटेड. अगर शॉर्ट सर्किटेड होगा देन ओनली सेकेंडरी करंट कैन फ्लो. सो वोल्टेज को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे until the rated current is achieved on both the winding. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट rated current is to be allowed in the winding without wasting output power. ठीक है, rated current अलाउ होना चाहिए but without wasting the output power. थर्ड वन इज as rated current is less on HV side. ठीक है, रेटेड करंट कम होता है एचवी साइड में. एज यू ऑल नो वोल्टेज एंड करंट का इनवर्स रिलेशन है. सो एचवी साइड में वोल्टेज लेवल ज्यादा है. अगर वोल्टेज लेवल ज्यादा होगा देन द रेटेड करंट लेवल विल बी लेस इन द एचवी साइड. ठीक है, एंड इट कैन बी कन्वीनियंट टू कंडक्ट द टेस्ट ऑन एचवी साइड बाय शॉर्ट सर्किटिंग एलवी टर्मिनल. ठीक है, बाय डूइंग दिस वी कैन बी एबल टू गेट द वैल्यू by considering low range of meters. ठीक है, सो इस टेस्ट को हम कंडक्ट कर सकते हैं ऑन HV साइड कीपिंग द LV साइड शॉर्ट सर्किटेड और लो रेंज मीटर का यूज करके हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट समझ में आया होगा. ठीक है, सो नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन. So the question is शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमने कंडक्ट कर लिया है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पे. नाउ व्हाट आर द स्टेटमेंट्स दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, इसे हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो एचवी साइड इज शॉर्ट सर्किटेड. सो क्या एचवी साइड को शॉर्ट सर्किट किया गया है? नो, एलवी साइड को शॉर्ट सर्किट किया गया है in order to perform the short circuited test on HV side. ठीक है, LV side is short circuited. It is performed at rated current. So yes, it is performed at rated current. It gives the core loss. So क्या ये core loss दे रहा है? No, core loss cannot be given through short circuit test. It can only be calculated through open circuit test. ठीक है, so this is wrong. इस टेस्ट से कौन से लॉसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हम वेरिएबल लॉसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, वेरिएबल लॉसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू शॉर्ट सर्किट टेस्ट. LV side is short circuited. So yes, LV side is short circuited. It is performed at rated voltage. So no, we have to increase the voltage slowly, gradually in order to get the rated current value. So यहाँ rated voltage नहीं हो सकता है whenever we are performing short circuit test. It gives the ohmic loss on the side instruments are connected. And last one is the calculation of voltage regulation. So yes, we can be able to find out the voltage regulation.
सो फ्रॉम ऑल these स्टेटमेंट्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इट इज नथिंग बट 2, 4 एंड 7. So it is an option number D. So option number D is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. So our next question is open circuit test on a single phase transformer gave the following data: 230 volt at 50 hertz, 2 amperes and power factor is 0.2 lagging. If the open circuit test is performed on 230 volt, 45 hertz, then the no load current will be dash. ठीक है. So what we have been given in this question, the open circuit test is going to conducted on a single phase transformer. ठीक है. So पहले सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पे ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट कर दिया गया है एंड जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं इट इज नथिंग बट 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज और जो पावर फैक्टर है इट इज नथिंग बट 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर दिया गया है. अगर ओपन सर्किट टेस्ट फिर से कंडक्ट किया गया है कंसिडरिंग द रेटेड वोल्टेज जो 230 वोल्ट गिवन था उसी वोल्टेज पे, बट नाउ द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज और न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है? दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज. पहले फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था एंड नाउ द फ्रीक्वेंसी इज 45 हर्ट्ज. दैट मीन्स रेटेड वोल्टेज पे बट द फ्रीक्वेंसी इज लेस. So we have to find out the no load current. So how we can be able to find out the no load current? So we have certain information regarding that also. So whenever the open circuit test is conducted at V1 rated, but the frequency should be less than the rated frequency. So V1 is rated value, but the frequency is less than rated frequency. ठीक है. So what are the conclusion we are going to get whenever we are doing open circuit test at V1 rated, but the frequency should be less than the rated frequency. So जो B max का वैल्यू आता है हमारा, जो फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू आता है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज V by F रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए. whenever we have a transformer फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए. दैट मीन्स B max का वैल्यू भी कांस्टेंट होना चाहिए when V by F ratio is constant. So B max is directly proportional to V by F and this ratio should be constant. बट क्या यह कांस्टेंट रह गया है? नो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है बट वोल्टेज रेटेड है. ठीक है. सो इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रेटेड फ्रीक्वेंसी देन द B max वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज. B max का वैल्यू कैसे हो रहा है? B max का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. सो B max इज नाउ मोर देन द रेटेड B max वैल्यू. ठीक है. So B max का value is more than rated B max value. That means B max is directly proportional to flux. So अगर B max का value increase हो गया that means flux का भी value increase हो जाएगा. Flux is also directly proportional to I mu. ठीक है. अगर flux का value increase हो गया that means I mu का value increase हो जाएगा because the transformer goes into the deep saturation because of the increment of flux value. ठीक है. अगर रेटेड फ्लक्स से ज्यादा फ्लक्स अगर ट्रांसफॉर्मर में आ गया then the transformer goes into the deep saturation. ठीक है. So I mu का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा and hence the transformer will get into the deep saturation. ठीक है. आयरन लॉसेस में क्या क्या चेंजेस होने वाले? एज यू ऑल नो कि आयरन लॉसेस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस. ठीक है. V by F रेशियो अभी कांस्टेंट नहीं है. whenever the V by F रेशियो आर नॉट कांस्टेंट then the hysteresis loss is directly proportional to V power 1/6 और डिनोमिनेटर में F power 0.6. This is going to be the hysteresis proportionality whenever the V by F ratio is not constant. And eddy current loss ये proportional हो जाएगा V square से whenever the V by F ratio is not constant. When V by F ratio is constant उसके लिए दूसरा इक्वेशन है. ठीक है.
So this is when the V by F ratio is not constant. V by ratio is not constant, then only we are going to get VH proportional to this ratio and eddy current losses is proportional to the square of voltage. ठीक है. So फ्रीक्वेंसी कैसा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है. अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स द हिस्टेरिसिस लॉस इज गोइंग टू इंक्रीज. अगर हिस्टेरिसिस लॉस इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स ओवरऑल कोर लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, कोर लॉस इज नथिंग बट आयरन लॉस ओनली. सो अगर हिस्टेरिसिस लॉस इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कोर लॉस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. So next point is active component of current, that means IW is also going to increase because the core loss is going to increase. So I'll explain कि कैसे active component of current increase होने वाला है. As you all know कि core loss का value क्या होता है, core loss is nothing but this one is equals to V1 I naught cos phi naught. ठीक है, I naught cos phi naught का वैल्यू क्या होता है, I naught cos phi naught is nothing but IW. So I'll just write here V1 IW. ठीक है. So as you all know कि आयरन लॉसेस तो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, आयरन लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड वोल्टेज तो रेटेड है. ठीक है, वोल्टेज रेटेड है, आयरन लॉस इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्टली IW का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. So IW, that means active component of current is going to increase because the core loss is increases. ठीक है. So overall नो लोड करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल नो लोड करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज बोथ द करंट आर गोइंग टू इंक्रीज. सो I naught is increases as both I mu and IW increases. ठीक है. Iron loss is increases, then the wattmeter reading also increases. Previously 50 hertz पे ही हम ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड एट 45 hertz. सो आयरन लॉस का जो पहले वैल्यू था अभी वो चेंज होके उसका रीडिंग भी इंक्रीज हो जाएगा. सो आयरन लॉस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. एंड नाउ कमिंग टू आवर पावर फैक्टर. पावर फैक्टर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, पावर फैक्टर इज गोइंग टू decrease, but in practical case as I mu is greater than IW, so because of core saturation there will be sharp rise in I mu as compared to IW. So hence the angle is going to increase and cos phi naught, that is nothing but power factor, is going to decrease. So I'll just try to show कि कैसे power factor में decrement हो रहा है and how the angle is going to increase. ठीक है. I'll just draw here phasor. This is the old value of IW. This is the old value of I mu. ठीक है. And old value of no load current का वैल्यू कितना आने वाला है, you have to do the vector sum. So vector sum करने के बाद में आपको यहाँ I naught का वैल्यू मिल रहा है. ठीक है. But now what is going to happen? Here I mu का भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एंड IW का भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बट प्रैक्टिकल केस में जो I mu का वैल्यू है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू IW. सो इफ I'll just take the value here, it is going to be the new value I mu dash. I'm going to consider I mu dash और IW का भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो IW का भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. नाउ यू हैव टू टेक the vector summation. So vector sum आप कीजिए and you can be able to get कि no load current का वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा. ठीक है. So the new no load current value is going to be this. So आप देख सकते हो कि ये इंक्रीज हो गया है. ठीक है. And what are the changes in the angle? पहले इतना एंगल था. ठीक है. This is the old angle and new angle में changes हो रहे. ठीक है. So new angle is this one. थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है एंगल में. अगर एंगल में इंक्रीमेंट हो रहा है दैट मीन्स पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. सो पावर फैक्टर कैसे होने वाला है, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा विद द इंक्रीमेंट इन द एंगल. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. एंड नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन.
तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि नो लोड करंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं. सो नो लोड करंट इज इंक्रीजेस, देयर इज गोइंग टू बी द इंक्रीमेंट इन नो लोड करंट. ठीक है, नो लोड करंट इंक्रीज हो जाएगा. बट जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर पहले 0.2 लैगिंग था. नाउ द पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज पावर फैक्टर एंगल is going to increase. So अगर एंगल इंक्रीज होने वाला है then power factor is going to decrease only ना. So पहले 0.2 लैगिंग था, now it is going to be less than 0.2 लैगिंग. ठीक है, so power factor is going to be less than 0.2 लैग. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So जो करेक्ट आंसर है for this given question is there is going to be the increment but power factor is less than 0.2. So option number D is only correct answer for this. So I hope it is clear to you all. Now moving towards our next question. So the question is, short circuit test on a single phase transformer gave the following data: 30 volt at 50 hertz and 20 ampere. Now the power factor given is 0.2 lagging. If again we do the short circuit test and we perform the short circuit test on 30 volt and 25 hertz, then the short circuit current is going to be dash. So पहले क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया था? So सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट कर दिया गया है और जो उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड था, जितने भी स्पेसिफिकेशन दिए गए थे, इट इज नथिंग बट 30 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज एंड 20 एम्पियर. और जो पावर फैक्टर दिया गया था, इट इज नथिंग बट 0.2 लैगिंग. बट नाउ अगेन शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन रेटेड वोल्टेज. यहाँ वोल्टेज पहले 30 वोल्ट था, नाउ ऑल्सो इट इज 30 वोल्ट. बट जो फ्रीक्वेंसी था, नाउ इट इज हाफ. पहले 50 हर्ट्ज था और यहाँ अभी 45 हर्ट्ज किया गया है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्ट सर्किट करंट. सो करंट, क्या करंट इंक्रीज होने वाला है या फिर डिक्रीज होने वाला है. एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दैट हमें पावर फैक्टर का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है या फिर पावर फैक्टर में डिक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर इंफॉर्मेशन. सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड एट V1 रेटेड वोल्टेज दिया गया है बट यहाँ फ्रीक्वेंसी लेस है. ठीक है, सो V/F रेशियो इज नो मोर कॉन्स्टेंट नाउ. So V1 is rated but frequency is less than rated. So voltage, that means short circuit voltage का value तो constant है but frequency is no more constant now. So let's discuss कि series branch parameter में क्या क्या changes होने वाले. So क्यों मैंने series branch parameter कहा? Because whenever we are conducting short circuit test, the main objective of short circuit test is nothing but to find out the series branch parameter which is nothing but R, X and Z. ठीक है, so R का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. क्यों कांस्टेंट रहेगा? Because it is independent on the frequency. But X का वैल्यू और Z का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा because X is equals to omega L. ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ एल. फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स एक्स का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. अगर एक्स डिक्रीज होगा दैट मीन्स जेड का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नाउ शॉर्ट सर्किट टेस्ट. शॉर्ट सर्किट टेस्ट का वैल्यू आपको पता है दैट इट इज नथिंग बट वोल्टेज बाय इम्पिडेंस. सो इम्पिडेंस में डिक्रीमेंट हो रहा है. सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या हो रहा है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, एज voltage of short circuit is constant, there is decrement in the impedance because there is decrement in the frequency. हम rated frequency पे conduct ना करते हुए less than rated frequency पे short circuit test conduct कर रहे हैं. That's why impedance का value decrease हो रहा है. If impedance is going to decrease, short circuit current is going to get increase. ठीक है, so short circuit power factor में क्या changes होने वाले हैं? Short circuit power factor में, so power factor cos phi short circuit is equals to R by Z. So R is independent on frequency, so R तो as it is रहेगा but there is decrement in the impedance value. So अगर impedance decrease हो जाएगा then the power factor is going to get increase. So अगर power factor increase हो जाएगा then
द क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू पावर फैक्टर ओनली। हमें फाइंड आउट करना था कि पावर फैक्टर में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, करंट में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। So we can be able to conclude that both the current and short circuit power factor is going to get increase। ठीक है, और कॉपर लॉसेस में क्या चेंजेस होने वाले, कॉपर लॉस इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज द शॉर्ट सर्किट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग बैक टू अवर क्वेश्चन में पूछा गया था कि शॉर्ट सर्किट में क्या चेंजेस होने वाले। सो शॉर्ट सर्किट में चेंजेस होने वाले, वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज, सो इट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो ISC इज इक्वल्स टू VSC डिवाइडेड बाय X01 या फिर Z01। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर डिक्रीमेंट एंड हियर इंक्रीमेंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और cos phi शॉर्ट सर्किट इज इक्वल्स टू R बाय ZSC। सो Z में डिक्रीमेंट हो रहा है, सो पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज। नाउ पावर फैक्टर इज गोइंग टू बी मोर देन 0.2 लैगिंग। ठीक है, और एंगल में क्या चेंजेस होने वाले हैं, पहले एंगल ज्यादा था, नाउ द एंगल इज गोइंग टू लेस बिकॉज द पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज। सो एंगल में डिक्रीमेंट होने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड आई कैन राइट हियर फॉर पावर फैक्टर एज वेल, cos phi 2 is going to be more than cos phi 1। ठीक है, सो जो इंक्रीमेंट होने वाला है वो करंट में इंक्रीमेंट होगा एंड पावर फैक्टर में भी इंक्रीमेंट होने वाला है। सो ऑप्शन नंबर C इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, if supply frequency in a transformer is doubled, then the options are hysteresis loss also doubles, eddy current loss doubles, iron losses doubles, and hysteresis loss decreases. So these are the options. So यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, that the transformer frequency is doubled। ट्रांसफॉर्मर का फ्रीक्वेंसी अगर डबल किया गया है, पहले अगर फ्रीक्वेंसी f था, now the frequency is changed into 2f। ठीक है, then जो losses में changes होने वाले, that we need to know। So we have certain information regarding this। So transformer losses के regarding एक table दिया गया है, we have to discuss this one by one। ठीक है, so this is the table of transformer losses। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, एक तो कांस्टेंट लॉस होता है एंड दूसरा वेरिएबल लॉस होता है। So in this table we are going to discuss only constant loss। So constant loss is nothing but iron loss, जिसे हम core loss भी कहते हैं। ठीक है, then the iron loss is consist of two different losses। First one is hysteresis loss and second one is eddy current loss। So I'll just write here that iron loss is equals to the summation of hysteresis loss plus eddy current loss। ठीक है, सो वी हैव सर्टन कंडीशंस, और इस कंडीशन को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे एंड वी कैन बी एबल टू गेट कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, एंड ओवरऑल आयरन लॉसेस में भी देखेंगे कि क्या इक्वेशन फॉर्म होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज व्हेनेवर द V by F रेशियो इज कांस्टेंट। सो अगर V by F रेशियो कांस्टेंट होगा, देन द हिस्टेरेसिस लॉस इज गोइंग टू बी दिस वन, A into F। eddy current loss is going to be B into F square। ठीक है, this is the general value and this is also the general value for hysteresis and eddy current loss respectively। ठीक है, so overall iron losses क्या होने वाला है, summation of this one and this one। ठीक है, दोनों का जब आप summation करेंगे then you are going to get the iron loss, but it is only for V by F constant value। अगर V by F constant नहीं होगा, then there will be new equation for hysteresis loss as well as eddy current loss। अगर V by ratio constant नहीं होगा, then this is going to be the value of hysteresis loss and this is going to be the value of eddy current loss। इन दोनों का जब आप summation करोगे, then you are going to get the iron loss value। ठीक है, again we have certain condition as voltage is constant but frequency decreases and frequency constant but voltage decreases।
सो ये सब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वेन एवर यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज टू कंडीशन, अगर ऊपर के दो कंडीशन आपको आ रहे हैं, देन ओनली यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, सो यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट कि हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस और आयरन लॉसेस में क्या क्या चेंजेस होंगे। सिमिलरली अगर वोल्टेज में डिक्रीमेंट हो रहा है या फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है और इट इज कांस्टेंट, सो क्या क्या लॉसेस में चेंजेस होने वाले, दैट ऑल्सो यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट थ्रू अपर दीज टू कंडीशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दोनों कंडीशन को कंसिडर करके पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो, कोई वोल्टेज में चेंजेस हो रहे हैं या फिर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द आयरन लॉसेस ओवरऑल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स V by F रेशियो इज नो मोर कॉन्स्टेंट नाउ। सो V by F is not constant now. तो अगर V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं है, देन हिस्टेरेसिस लॉस में क्या चेंजेस होने वाले हैं? सो हिस्टेरेसिस लॉस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू V पावर 1/6 डिवाइडेड बाय F पावर 0.6। एंड एडी करंट लॉसेस में क्या चेंजेस होने वाले हैं? सो एडी करंट लॉसेस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे, वोल्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं दिया गया है, दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर वोल्टेज एज कांस्टेंट ओनली। सो फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है, सो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा देन हिस्टेरेसिस लॉस इज गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड। और एडी करंट लॉसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, सो इट इज गोइंग टू बी नो चेंज, नो चेंज। सो ओवरऑल जो हमारा आयरन लॉस है, सो ओवरऑल आयरन लॉसेस में क्या चेंजेस होने वाले हैं? सो ओवरऑल आयरन लॉसेस इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज हिस्टेरेसिस लॉस इज गोइंग टू डिक्रीज, देयर इज नो चेंज इन एडी करंट लॉस। ठीक है, सो जो ऑप्शन है करेक्ट वन इज नथिंग बट हिस्टेरेसिस लॉस इज गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड। So option number D is only correct answer for this. So whenever the supply frequency in the transformer is doubled, then the hysteresis losses is going to decrease. ठीक है, so I hope आपको ये समझ में आया होगा। Now moving towards our next question. So the question is, the frequency of the supply voltage to a transformer at no load is increased, but the supply voltage is held fixed. With this, we have certain statements, we have to read it one by one. So eddy current loss remains constant but the hysteresis loss increases. Eddy current loss remains constant but the hysteresis loss decreases. Magnetizing current increases but the core loss current decreases. Both the magnetizing current and core loss current decreases. So these are the statements. From this the correct answer is dash. सो वी हैव टू चेक कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया था? क्वेश्चन में हमें दिया गया था दैट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज। सो फ्रीक्वेंसी इज नो मोर कांस्टेंट बट द सप्लाई वोल्टेज इज फिक्स। सो आई कैन राइट हियर दैट V इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट दिया गया है, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, बट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या V by F रेशियो कांस्टेंट रहेगा? नो, V by F रेशियो इज नो मोर कांस्टेंट नाउ, सो इट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज देयर इज इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है सो हम देखेंगे कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस के कौन कौन से न्यू फॉर्मूलाज होने वाले। सो आई विल जस्ट राइट हियर WH, it is nothing but hysteresis loss. So hysteresis loss is equals to A V power 1.6 divided by F power 0.6. ठीक है, ये हमारा हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला है। एंड एडी करंट लॉस का फॉर्मूला इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू B V स्क्वायर। सो ये दोनों फॉर्मूलाज तो हमने लिख लिया।
सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन में हमें दिया गया था दैट द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज। सो अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो गया देन हिस्टैरिसीस लॉस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। सो हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। बट एडी करंट लॉसेस में कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या? नो, बिकॉज voltage is constant, so there is no change, there is no change. So overall iron losses में क्या changes होने वाले हैं? So overall iron losses is equals to the summation of hysteresis loss plus eddy current loss. So अगर hysteresis loss decrease हो रहा है that means overall iron losses भी decrease हो जाएंगे. So this is the conclusion. Now we have to go through one by one कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। सो एडी करंट लॉस रिमेन्स कांस्टेंट, सो यस एडी करंट लॉस रिमेन्स कांस्टेंट बट द हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीजेस। सो क्या इंक्रीज हो रहा है हिस्टैरिसीस लॉस? नो, इट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। सो एडी करंट लॉस रिमेन्स कांस्टेंट, यस, बट द हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीजेस। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीजेस बट द कोर लॉस करंट डिक्रीजेस। सो करंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं? As you all know that phi is directly proportional to V by F, ठीक है। So frequency is going to increase, that means phi का वैल्यू क्या हो रहा है? phi का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। So we have one formula for phi also. So phi क्या होता है? phi is nothing but mmf by reluctance. So mmf क्या होता है? n into I mu divided by reluctance value. सो अगर फाई का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आई म्यू का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई म्यू। सो फाई डिक्रीज हो रहा है, सो आई म्यू का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा देन ओवरऑल कोर लॉस करंट का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आई नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। सो अगर आई म्यू का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है सो ओवरऑल नो लोड करंट का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। सो मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीजेस, सो क्या इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट? नो, इट इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज रॉन्ग। बोथ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस करंट डिक्रीजेस, सो यस both magnetizing current and core loss current is going to get decrease. So option number 2 and option number 4, I mean statement number 2 and statement number 4 ये दोनों correct है. So option number B is only correct answer for this. So 2 and 4 is correct. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. So our next question is the hysteresis and eddy current losses of a single phase transformer working on 200 volt 50 hertz supply are PH and PE respectively. The percentage decrease in these losses when operated on 160 volt 50 hertz supply would respectively be dash. So हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? We have been given a single phase transformer और single phase transformer में लॉसेस दिए गए हैं हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, जिसका रिप्रेजेंटेशन पीएच और पीई रिस्पेक्टिवली से किया गया है, ठीक है। दैट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई, बट नाउ व्हेन द ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग ऑन 160 वोल्ट एंड 40 हर्ट्ज सप्लाई, then we have to find out the percentage decrement in this losses. So original value क्या दिया गया था? Original value was 200 volt and 50 hertz. But new value कितना दिया गया है? New value is 160 volt and 40 hertz. ठीक है? So आपको क्या चेक करना है? You have to check V by F ratio first. So क्या V by F ratio constant है या फिर उसमें कोई changes है? That we need to know. So V by F ratio आप find out कीजिए. V by F is nothing but 200 divided by 50. So क्या result आने वाला है? It is nothing but 4. Now check for 160 divided by 40. So V by F ratio क्या constant आ रहा है या फिर कोई changes है? No, it is constant only. So V by F ratio दोनों के भी constant है. So we can be able to solve hysteresis loss
एंड एडी करंट लॉस डायरेक्टली नाउ, बिकॉज हमारे पास V by F रेशियो कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है. सो वेन एवर V by F रेशियो इज कांस्टेंट, so PH value is directly proportional to the frequency and PE value is directly proportional to the frequency square. ठीक है. So ये दोनों को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे चेंजेस, क्या परसेंटेज चेंजेस होने वाले हैं लॉसेस में. ठीक है. सो सबसे पहले हम हिस्टेरिसिस लॉस के लिए फाइंड आउट करेंगे. सो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, राइट. सो परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो न्यू वाला टर्म है, न्यू टर्म यू हैव टू टेक फर्स्ट एंड ओल्ड टर्म यू हैव टू टेक नेक्स्ट. सो सबसे पहले आप न्यू टर्म लीजिए, दैट मीन्स F2 minus F1 divided by the original value into 100. This is the percentage hysteresis loss. So percentage कितना चेंज आ रहा है? It is nothing but 40 minus 50 divided by 50 into 100. ठीक है. रिजल्ट क्या आ रहा है? It is nothing but minus 20%. सो यहाँ माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज डिक्रीमेंट इन द हिस्टेरिसिस लॉस. सो आपका लॉस माइनस नहीं आया है, उसका जब हम चेंज फाइंड आउट किए, सो इट शोज दैट देयर इज गोइंग टू बी द डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस. सो ओवरऑल percentage change in the hysteresis loss is going to be 20%, but it is decreasing. ठीक है. losses negative नहीं होते हैं, 20% डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव टर्म आया है. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडी करंट लॉस. सो एडी करंट लॉस PE का परसेंटेज चेंज हमें फाइंड आउट करना है. सो इट इज गोइंग टू बी F स्क्वायर दिया गया है ना, प्रोपोर्शनैलिटी. सो आई एम गोइंग टू टेक 40 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर. ठीक है. into 100. So when you will solve this, you are going to get 36%. But 36% क्या आने वाला है? minus 36%. So hysteresis loss negative नहीं होता है. minus indicates there is going to be the decrement in eddy current loss. ठीक है. So I can write here that percentage change of eddy current loss is 36%, but it is decreasing. ठीक है. losses negative नहीं होते. So these two are the result. So let's discuss कि कौन से ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है. So it is in option number B. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. So moving towards our next question. So the question is a 10 kVA 400 by 200 volt single phase transformer with leakage impedance of 10% draws a steady short circuit line current of dash. So question में क्या दिया गया है? That there is one single phase transformer whose leakage impedance is given. कितना दिया गया है leakage impedance? Z percentage में दिया गया है, right? So it is nothing but 10%. And also specification दिया गया है, कितना kVA का ट्रांसफॉर्मर दिया गया है? It is nothing but 10 kVA. और जो वोल्टेज दिया गया है it is 400 बाय 200 वोल्ट. ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी HV साइड है एंड दिस इज नथिंग बट सेकेंडरी साइड विच इज LV. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्ट सर्किट लाइन करंट. ठीक है. शॉर्ट सर्किट लाइन करंट आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें प्राइमरी साइड का करंट फाइंड आउट करना है. So whenever we are connecting primary side of transformer to the supply, then the line current is going to flow through the transformer. वही करंट हमें फाइंड आउट करना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन एम्पियर्स, दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू. बट हमें इम्पिडेंस का पर यूनिट में वैल्यू दिया गया है, दैट मीन्स परसेंटेज में दिया गया है. सो सबसे पहले आप इम्पिडेंस का वैल्यू ओम्स में कन्वर्ट कीजिए. आप सॉल्व कीजिए कि पर यूनिट वैल्यू को आप कैसे ओम्स में चेंज कर सकते हैं, देन यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू. ठीक है. सो Z का वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि Z एक्चुअल वैल्यू क्या होता है. ठीक है. Z एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू Z पर यूनिट वैल्यू इनटू Z बेस वैल्यू.
ठीक है। सो पर यूनिट वैल्यू का तो वैल्यू हमें दिया गया है 10%, बट जेड बेस का वैल्यू क्या होता है? जेड बेस का वैल्यू इज नथिंग बट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय केवीए, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय केवीए। ठीक है। सो आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट द जेड एक्चुअल वैल्यू. So I'll just write Z per unit value is 0.1 into V square. V square 400 square divided by KVA value. So KVA कितना दिया गया है? KVA is 10 KVA into 10 power 3. ठीक है. So when you will solve this, you are going to get Z is equals to 1.6 ohms. So 1.6 ohms आपको मिल जाएगा and substitute in this formula. So ISC is equals to V divided by Z. So V का वैल्यू कौन सा कंसिडर करना है हमें? 400. So 400 divided by 1.6 is nothing but 250 amperes. So this is the correct answer. So it is in option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इम्पिडेंस के वैल्यू को चेंज करके एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट किया एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर फॉर करंट वैल्यू. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is a 220 by 440 volt 50 hertz 5 kVA single phase transformer operates on 220 volt 40 hertz supply with the secondary winding open circuited, then dash. So options are both eddy current and hysteresis losses decreases, both eddy current and hysteresis loss increases, eddy current loss remains the same but the hysteresis loss increases, eddy current loss increases but the hysteresis loss remains the same. So what we have been given in this question, that the open circuit test is going to be conducted on a single phase transformer. So single phase transformer के कुछ specification दिए गए हैं, ratings दिए गए हैं. So voltage rating क्या दिया गया है? 220 by 440. That means it is a step up transformer, right? So पहले LV side है और उसके बाद में HV side दिया गया है. So LV side का voltage कितना दिया गया है? 220 वोल्ट और HV साइड का 440 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया गया है और केवीए रेटिंग ट्रांसफॉर्मर का 5 केवीए दिया गया है. ठीक है. नाउ द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट बट द फ्रीक्वेंसी शुड बी 40 हर्ट्ज. सो ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे. So as you all know कि whenever we are conducting open circuit test on a transformer, you have to consider low voltage value. So low voltage 220 वोल्टेज दिया गया है बिकॉज ओपन सर्किट टेस्ट हम लो वोल्टेज साइड पे करते हैं और HV साइड को हम ओपन रखते हैं. ठीक है. सो ओल्ड वैल्यूज में यहाँ लिख लेती हूँ. व्हाट आर द ओल्ड वैल्यूज? 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. और न्यू वैल्यू कितना दिया गया है? न्यू वैल्यू इज नथिंग बट 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 40 हर्ट्ज. ठीक है. सो आपको लॉसेस फाइंड आउट करना है, राइट? सो लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू चेक कि V/F रेशियो कैसा होने वाला है. क्या ये कांस्टेंट होगा या फिर चेंजेस होने वाले. सो V/F रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू वैल्यूज के लिए. सो यहाँ हम ओल्ड के लिए फाइंड आउट करेंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बाय कंसिडरिंग न्यू वैल्यूज. ठीक है. सो V/F is equals to 220 divided by 50 और न्यू वैल्यूज कितना है? V/F is equals to 220 divided by 40. So as you can see कि वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट है. ठीक है. वोल्टेज तो कांस्टेंट है बट देयर इज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? 50 से 40 में जा रहा है. दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी द डिक्रीमेंट इन द फ्रीक्वेंसी. सो V/F रेशियो इज नो मोर कांस्टेंट नाउ. सो V/F is not constant. ठीक है. क्यों? because there is going to be the decrement in frequency value. so चलिए हम सॉल्व करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज होने वाले हैं हिस्टेरेसिस लॉस एज वेल एज एडी करंट लॉस के लिए whenever V/F ratio is not constant. so
PH, that means hysteresis loss, is directly proportional to V power 1 by 6 divided by F power 0.6. This is when the V by F ratio is not constant. Similarly, for eddy current losses is directly proportional to V square. This is when V by F ratio is not constant. So, अगर V by F ratio constant होगा, then there is going to be the changes in the equation of hysteresis as well as eddy current losses. ठीक है? So, आप सॉल्व कीजिए कि hysteresis loss और eddy current loss में क्या changes होने वाले. So, as you all know कि frequency में decrement हो रहा है. So, I'll just write that there is going to be the decrement in frequency. That means hysteresis loss is going to get increase. हिस्टेरेसिस लॉस क्या होने वाला है? हिस्टेरेसिस लॉस इंक्रीज हो जाएगा. क्या एडी करंट लॉसेस में कोई चेंजेस होने वाला है? नो, बिकॉज वोल्टेज कांस्टेंट है. पहले भी 220 ही था, अभी भी 220 है. दैट मीन्स वोल्टेज इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. सो एडी करंट लॉसेस इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो देयर इज नो चेंज इन द एडी करंट लॉसेस. ठीक है. सो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है एंड विच वन इज करेक्ट. बोथ एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस डिक्रीजेस. नो, एडी करंट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. बोथ एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस इंक्रीजेस. रॉन्ग. एडी करंट लॉस रिमेन्स सेम. यस, एडी करंट लॉस रिमेन्स सेम बट द हिस्टेरेसिस लॉस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. सो ऑप्शन नंबर C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our last question. So the last question is, a multimeter for a measuring resistance is connected to one terminal to primary and other terminal of secondary. The multimeter reading would be dash. So क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में? That we have two terminals of transformer. ठीक है. सो अगर हमने ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी टर्मिनल दोनों के बीच में अगर मल्टीमीटर को प्लेस कर दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस दैट वी नीड टू नो. ठीक है. सो आई जस्ट ड्रॉ हियर फिगर. दिस इज द प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. सो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टर्मिनल के बीच में अगर हमने मल्टीमीटर को प्लेस कर दिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ मल्टीमीटर को प्लेस कर दिया, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सो दोनों के बीच में क्या रेजिस्टेंस आने वाला है, दैट वी नीड टू नो. एज यू ऑल नो कि जो ट्रांसफॉर्मर का एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस होता है, इट इज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस. ठीक है. हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसका प्राइमरी टर्मिनल. हियर वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. यहाँ हमने सप्लाई को कनेक्ट कर दिया प्राइमरी टर्मिनल में, बट नाउ द एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड से ही एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी. सो अगर आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया इन दोनों टर्मिनल के बीच में, सो क्या आपको कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलने वाला है? नो, बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द इंफिनिटी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ द रेजिस्टेंस वैल्यू इज गोइंग टू बी इंफिनिटी. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज इंफिनिटी. सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट होगा, सो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी. सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड गिव मी सर्टन सजेशन रिगार्डिंग द सीरीज. अगर कोई चेंजेस करने हैं या फिर नहीं करने हैं, गिव मी सजेशन सो दैट आई कुड एबल टू टेक द सेशंस इफेक्टिवली. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. So thank you guys.